So, before we start, I would request for some patience because I just got to know we're running out of time. But money making is time of, game of patience. So, if we take some time, my sincere apologies way in advance. We cannot make money quickly. And to begin with, I have, like I told you people earlier, 20 साल से ज़्यादा, more than 2 decades of experience, and I have seen people approaching, talking about कि शेयर बाजार से पैसा कमाना है, तुम हर महीने कितना पैसा कमा के दे दोगे, and I have seen उन लोगों के घर बिकते हुए. सो पेशेंस का आइडिया, टाइम का आइडिया वहां से लग गया कि यहां अगर फाटाफाटी करके फाटका कर लिया तो फट जाएगा सब कुछ. दिस इज द वे इट फंक्शंस, दिस इज द वे इट वर्क्स. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, फॉर समबडी जो पिंक पेपर पढ़ के, जिसने इनिशियल ईयर्स सीएनबीसी देख देख के थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख लिया, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट समझ लिया और पिंक पेपर को पढ़ के नोट्स बनाते थे, थोड़ा रिसर्च करते थे और फिर देखते थे कि शेयर कैसे चलता है. फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसने सिर्फ ये देखा था कि केवाईसी के लिए पैन कार्ड चाहिए और आपका अकाउंट खुल जाता था, उस टाइम से लेकर अभी तक का टाइम पूरा देखा है और हैव सीन अ लॉट, लर्नड अ लॉट. बट यहां पे कुछ अभी ऐसे लोग हैं जो रिसेंट टाइम्स और न्यू टेक्नोलॉजी को ही पूरा अडेप्ट कर रहे हैं. तो गंधर्व, हाँ जी, कमिंग बैक टू यू. Thank you, Mr. Lavjit Alex sir and India Business TV for giving me this opportunity. I am literally appearing for the 3rd time over here. So, आते हैं about the discussion. So, wealth creation, how can we achieve wealth creation in the stock markets? So guys, I belong from the technical background. I have been practicing technical analysis from the past 7 years and I follow a simple strategy. If a stock is giving a rounding bottom breakout on a monthly time frame, go long. Set up a 20-day moving average and go long with a stop loss. That is your investment strategy for the stock. Fundamentals बाद में change होना start होते हैं, news बाद में बाहर आती है, सबसे पहले price में breakout आता है. Simple है, identify a rounding bottom or an inverted head and shoulder breakout on a monthly time frame and that is how you make money in your investment portfolio. This is the simple strategy that I follow. बहुत टेक्निकल हो गया यार ये. Vivek, you hail from Bangalore and I believe you're running your company in quite a decent manner. And last business that you were into, बहुत अच्छे पैसे कमाए आपने, IIFL को वो बिजनेस दिया. सो टेक पॉइंट, यंग जैन, बैंगलोर, वहां पैसे कैसे बनाते हैं ये मेरे दर्शकों को बताइए आप. नहीं तो पैसे तो सब लोग, आई थिंक अभी कॉमन पार्लेंस है, फ्यूचर इन ऑप्शंस, इक्विटीज में लोग काफ़ी डैबल कर रहे हैं एंड सेबी इज ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट इट. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैपनिंग वेयर पीपल आर एडवाइज नॉट टू डू दिस. In fact, in the last 2-3 weeks, I hold these Twitter spaces where I had come and mentioned about few stocks जहाँ पर bonus issues आए थे. Those stocks gave 1:5, 1:6, stocks like Salasar, Techno, etc. तो हमने अपने users को, general public को बोला था कि ये सब stocks से दूर रहिए. काफ़ी influencers के darlings थे ये सब stocks and in the time which we speak, over the last 2 weeks, these stocks have corrected by at least 30-35%. So, अगर आप social media में देखोगे तो they want to attract you with stories which are possibly not true. So, एक stock का 5 stock मिल रहा है. People who have not seen the market might think कि हमें free में shares मिल रहे हैं. First, I'd like but to ऐसा है नहीं. spare a few words So before I go into the question. A lot of misinformation is being spread. So, पैसे तो अभी बन रहे हैं, but I think पैसे लॉस भी बहुत होने वाला है, which we are not seeing. और पॉकेट्स में हो भी रहे हैं and I think कभी कुछ क्रैश आएगा तो बहुत बहुत बड़ा लॉसेस होगा. राइट विवेक, थैंक यू. संतोष सर आपके पास आते हैं और आपके पास आने में हमेशा से फॉर पास्ट 2.5 years डर बहुत लगता है. आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी हर सब्जेक्ट में
बहुत इन डेप्थ होती है। और जो अभी विवेक ने बात करी उस पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप इनपुट दे सकें, अगर कि लोग अब ये सोचने लग गए हैं, लाइक अभी कुछ हमारा पैनल डिस्कशंस भी हो रहे थे जहां पे वी वर गोइंग गन गो अबाउट द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। लोग ये सोचने लग गए हैं स्टॉक्स फ्री में मिल रहे हैं। आई रियली लाइक द लाइन विवेक यू पुट फॉरवर्ड इन दैट मैनर। क्या है सच्चाई, आगे क्या देखते हैं? तो देखो, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे समंदर को आप देखो अगर, तो समंदर में जब हाई टाइड होता है तो सारी चीज़ समंदर जो है वहाँ से मोती भी बाहर आते हैं और कचड़े भी बाहर आते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि कौन सा मोती है और कौन सा कचड़ा है। शॉर्ट टर्म में आपको देखोगे कि जहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी बबल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें स्टोरी जो बढ़ती हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत चलती हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जो अगर हीरा है तो वो सदा के लिए, राइट। तो आपका हमारा एंडेवर होना चाहिए कि वो हीरे को कैसे पहचाने। वो एंडेवर में आपको डीप डाइव करना होगा, थोड़ा सा जो है वन स्टेप फर्दर आपको जाके देखना होगा। केवल प्राइस मूवमेंट अगर आप देखते हैं तो वो थोड़े समय के लिए होता है, जो कि मार्केट के साथ चल रहा होता है, लेकिन जो बिहाइंड द स्टोरी है कंपनी के, या फिर अगर कह लें कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मैनेजमेंट एंडेवर कर रहा है कि हमें ये चीज़ करनी है। जैसे कि अभी म्यूचुअल फंड का सेशन चल रहा था, हमने देखा कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहा है। टोटल डेटा देखने उस वाले हैं। इकोनॉमी होने में कौन से बिजनेसेस अपने आप को अलाइन करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं एनालिसिस का, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमी कैसी है, गवर्नमेंट कैसी कर रही है, कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है और कौन से विनर हो सकते हैं। बेसिकली हमको पहचानना है कि विनर कौन से होगा। जैसे आप अगर कभी घोड़ा रेस में जाओ और घोड़े को देखो, मैंने थोड़ा अनुभव रहा है मेरे को, मैं गया हूँ देखता था। तो चूंकि मैं शुरू मेरे लाइफ का जो मैं टेक्निकल एनालिस्ट था, उसके बाद मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हुआ, तो मैं ऐसे ही जस्ट कुतूहल होता था कि आखिर ये घोड़ा रेस होता क्या है। तो वहां पर ना जब आप देखोगे घोड़े रेस में घोड़ों को पहले टहलाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि ये जॉकी है, ये घोड़ा है। आप देखोगे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो घोड़ा टॉप 3 में आने वाला है ना, वो मचलता रहता है, उसके अंदर एक एनर्जी का ऑरा अलग सा रहता है, राइट। और हमने ये नोटिस किया, और मेरे को खेल पता नहीं था, मैं चूंकि जाता था केवल देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तो देखता था कि जो अच्छे घोड़े हैं जिसमें एनर्जी लेवल काफी हाई है, वो उनके लिस्ट में नाम रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर अगर ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनियां एंडेवर अच्छा करती हैं। अब अगर आप थोड़ा फर्दर डीप डाउन करो, फंडामेंटल की थोड़ी समझ रखो, तो देखो कि कैश फ्लो कैसे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बिजनेस में कैश फ्लो इज लाइक ब्लड टू अवर बॉडी। अगर हमारे में ब्लड प्रेशर ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम ठीक ठाक हैं। इस तरह से अगर बिजनेस में कैश फ्लो ठीक हो रहा है, प्रमोटर किसी तरह की कुछ बदमाशी नहीं कर रहा है और अपने आप को अलाइन कर रखा है, जो कि ग्रेटर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी है उधर की तरफ है, तो वी आर डन। हमको पैसे मिलते हैं और उसमें एक्स मल्टीपल टाइम्स पैसे मिलते हैं, कई गुना होता है। क्योंकि चूंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट था पहले, मैंने जिंदगी की शुरुआत वहीं से की, लेकिन नॉलेज मेरे जानना है, मेरे को अंत तक जाना है, मुझे फिर फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, आप ये तो देख ही रहे हो, लेकिन स्टोरी बिहाइंड क्या है, इसके परे क्या चीज है, तो वो दिखता है कि फंडामेंटल कंपनीज अपने आप को कैसे अलाइन कर रखी हैं, कौन से केपेक्स में है, मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीजों को अगर आप देखते हैं, यू विल गेट अ डिफरेंट पिक्चर। आपके स्टॉप लॉस मेरे कई बार होते हैं, स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, ट्रिगर हो रहा है, लेट इट बी। मैं कन्विंस्ड हूँ विद द स्टोरी, विद द मैनेजमेंट, ये चीज होने वाली है, और वो कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको वैल्यू देखना है, क्वालिटी देखनी है, और वहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे, यू आर रेस्ट एश्योर्ड यू आर गोइंग टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी। आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ में आ गया होगा क्यों कहा था मैंने संतोष सर से डर लगता है। इतनी सारी चीजें कंपाइल करके इन्होंने दी हैं। अब इसमें देखिए, आपने एक बात बोली, घोड़ा जो मचलता है वो जीतता है। अभी एक सेक्टर है जो घोड़ा बना हुआ है, या आगे क्या होने वाला है उसका आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। द सेक्टर इज इंफ्रा। ये मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहा है? ये मुझे इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि
गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, गवर्नमेंट इंफ्रा में पैसा डाल रही है, 1 रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है, 5 से 6 रुपया बन के मार्केट में घूमता है। ये सारी कहानी सुनी, बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ हुआ। एंड बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज से मीटिंग चलती रहती है। आई हैव टू मूव अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। सर्टन पोर्शंस बहुत खुश हैं कि हाँ 10.5 लाख करोड़ से 11,11,000 करोड़ हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब डाउन साउथ मैं विजिट करता हूँ और वहां पे थोड़े से नंबर्स को ज्यादा स्टडी करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आऊंगा। उन्होंने एक सवाल किया छोटा सा कि कैपेक्स अनाउंस करना और उसको यूटिलाइज करना 2 अलग अलग चीजें हो रही हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, आप कैपेक्स यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इंफ्रा में भी नहीं, डिफेंस में भी नहीं, अब आप एनहांस कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी विवेक, व्हाट नंबर यू पुट टू इट एंड हाउ डू यू सी कि अब इंफ्रा, जैसे कि आई वुड नॉट, बिकॉज माई प्रोफेशन डज नॉट अलाउ मी, आई कैन नॉट पब्लिकली टॉक अबाउट स्टॉक्स, बट हाँ आप क्या बोलते हैं, इंफ्रा ओवर वैल्यूड हो गया है, डिफेंस ओवर वैल्यूड हो गया है, गवर्नमेंट की कैपेक्स को देख के हम खुशी मनाते रहे या रिंगा रिंगा रोजेस अब हैशा हैशा करके ऑल फॉल डाउन होने वाला है? देखिए, एक फंडामेंटल चेंज जो हुआ है इंफ्रा कंपनीज में, इसकी उनका जो बैलेंस शीट्स है काफ़ी बेटर हुए हैं पहले से। आई थिंक वो जो उनको प्रीमियम्स नहीं मिल रहे थे, प्राइस टू बुक या जो भी है, बहुत लोअर थे, वो सब इंक्रीज हो गए। सो दैट आई थिंक इज जस्टिफाइड। अभी क्या है, ऑफकोर्स लास्ट 3-4 महीने में जैसे आपने बोला कैपेक्स के जस्ट फ्यूचर के पोटेंशियल देख के काफ़ी आई थिंक फ्रॉड तो है उसमें। हम भी कभी काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल से बात करते हैं तो सबको इंफ्रा फंड्स चाहिए, PSU फंड्स चाहिए, तो पीपल जस्ट वांट टू बाय व्हाट इज द लेटेस्ट फैड। सो उसके कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को पैसे मिल रहे हैं उस थीम्स में, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, फिर उनको जाके वो पैसे लगाने पड़ते हैं। सो एक विशियस साइकिल है जो चल रहा है। बट ऑफकोर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि जो इसको खेलना चाहता है, ही शुड कम्प्लीटली अवॉइड इट राइट नाउ। अगर खेलना भी है तो ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सब सेक्टर्स चलेंगे, इंफ्रा भी अच्छा रहेगा, PSUs भी अच्छे रहेंगे। बट ये सोच के उसमें इन्वेस्ट करना कि 3-6 महीने में पैसे बन जाएंगे, आई थिंक दैट इज़ रिस्की। तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, इंफ्रा फंड्स या इंफ्रा स्टॉक्स में भी डालना हो तो आप 3-6-9 महीने में SIP करके आप उसमें डालो, और छोटे अमाउंट्स के। अगर गिरते हैं तो SIP को आप बढ़ा दो, और अगर वो फॉल होता है तो SIP को आप इंक्रीज कर दो, और नहीं तो जस्ट कंटिन्यू विद द SIP, बिकॉज 5-10 ईयर्स में दीज 2 सेक्टर्स आई थिंक विल कंटिन्यू टू डू वेल। थैंक यू। मचलते घोड़े की बात कर रहे हैं तो कैसे गंधर्व को भूल सकते हैं? टॉक अबाउट इंफ्रा, गंधर्व। So infra में I think we must understand that the sector has been running because there are expectations of a rate cut. आप देखोगे अभी सिंस यूएस का डेटा वीक आया है, इन्फ्लेशन डेटा, वी हैव अ 0.3% वर्सेस 0.2%, तो यहाँ पे द चांसेस ऑफ अ रेट कट हैव गॉन डाउन फ्रॉम 6 इन अ ईयर टू ओनली 4 इन अ ईयर। सो आई बिलीव जो इंफ्रा एंड रियलिटी स्टॉक्स में जो रैली आ रही थी, दैट वाज ऑन द सेलिब्रेटेड ओकेजन ऑफ अ रेट कट, जिसके चांसेस अभी कम होते हुए दिख रहे हैं। सो यस, एज सर सेड, हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन स्टेप लेना चाहिए, एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स वोंट बी एडवाइज्ड अनलेस एंड अनटिल एक्चुअली में एक रेट कट आता है सिस्टम में। सर इंफ्रा तो रूल आउट हो गया, बजट आपने भी देखा है, अब बताइए कि इंफ्रा नहीं तो क्या है सही? देखिए, इंफ्रा डेफिनेटली जो है एक फोकस एरिया रहा है गवर्नमेंट का, और हमेशा हम यही देखते हैं कि देखिए, अगर जब एनालिसिस करते हैं तो पहले चीज़ देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, दूसरी चीज़ देखते हैं कि कंपनियां क्या कर रही हैं, क्योंकि एटलीस्ट सरकार से तो पैसा हम नहीं कमा सकेंगे, कंपनियां कमाएंगे, लेकिन हम कंपनियों में इन्वेस्ट करके कमाएंगे, राइट। तो जैसे इंफ्रा में बूम तो काफ़ी आ चुका है, हमने देखा है कई कंपनियों, अब अगर आप L&T को ही देख लें, काफ़ी बढ़ गया स्टॉक इन दोनों। हमने इसमें एक ITD सीमेंटेशन काफ़ी पहले लिया था, काफ़ी सस्ता था, लेकिन इंफ्रा एज ए होल मुझे लगता है कि स्टोरी तो रहने वाली है यहाँ पे, लेकिन हम अब जो नेक्स्ट पेट देख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देख रहे हैं। इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी होगी इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में अगर आप देखोगे मार्जिन बहुत थिन होती है, इंफ्रा में डेट लेना पड़ता है कंपनियों को रन करने के लिए बिजनेस,
और अगर कहीं भी कोई साइकिल थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखो, और जो सेमीकंडक्टर की बात चल रही है अभी, इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब होने वाला है, काफ़ी कंपनियां एंडेवर कर रही हैं, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है इसके इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। वैसे क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव थी, लेकिन बाद में उनको पता चला कि हमारे पास फोर्स नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स नहीं है जो कि इस चीज़ में काम लग सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैकफुट पे गए हैं, धीरे धीरे करें, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है सेमीकंडक्टर का यहाँ करें और ताइवान से लोगों को लेके आएँ। ये शायद नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट तो। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में प्राइवेट कैपेक्स धीरे धीरे चालू हुआ है, कंपनियों को कॉन्फिडेंट बिल्ड कर रही है। तो बहुत सारे क्षेत्र में आप देखोगे लोग कैपेक्स डाले जा रहे हैं। स्पेशली अगर आप इंफ्रा की बात कर लो, इंफ्रा का एक सेक्टर एनर्जी सेक्टर भी है, जहाँ पर काफ़ी बड़ा मतलब एक कह लें कि शिफ्ट हो रहा है, जो कि थर्मल से रिन्यूएबल की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपको वहाँ देखना चाहिए। बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब अडानी से लेके मतलब जिंदल देख लीजिए, इवन फॉर दैट मैटर रिलायंस देख लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर क्लिक हो जाता है, हम अगर इस चीज़ को ईजाद कर लेते हैं कि पर लीटर हमारा जो कॉस्ट होगा वो अगर कम हो जाता है, आई थिंक दैट विल इज़ गोइंग टू बी, मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है डिस्कवरी होगा इस क्षेत्र में। कंपनियां काम कर रही हैं, एंडेवर कर रही हैं। तो हम लोग की काफ़ी नज़र है कि ये जो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं वहाँ पर कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, टाइम विल टेल। लेकिन ये जो सेक्टर स्पेसिफिक है, मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि बात कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें इंडिजिनियस बनाएं, सबसे पहला एंडेवर था उनका डिफेंस। अगर आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 2030 तक मैक्सिमम जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगा वो हमारा इंडिजिनस होने लगेगा। और आपने देखा कि डिफेंस के स्टॉक में कितनी बड़ी रैली आई। ऐसे नहीं है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च किया है सरकार ने, हमने किस सरकार ने क्या किया वो नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो सरकार वास्तव में खर्च कर रही है, जो बोल रही है, जो बजट एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जो उसके बाद एक्चुअल बजट्स आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें दी जा रही हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जल जीवन मिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं, लास्ट ईयर 70,000 करोड़, इस बार भी 70,000 करोड़ दे रहे हैं। पाइप की कंपनियों को देखें आपने इस बार जो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है बजट में, जो कि एक इंटेंशन है गवर्नमेंट का कि हम मिडिल क्लास को घर देंगे, उनको मतलब उसका उन्होंने खाका नहीं दिया, जस्ट एक लाइन कही है कि हम मिडिल क्लास को उनका अपना घर देंगे या फिर वो फ्लैट लेना चाहें तो उस पर सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि सीमेंट, आपको लोहे, ये सारी चीज़ें लगेंगी। और आप ध्यान रखें कि एक घर बनता है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा चक्का चलता है। घर के साथ पेंट, मेरे एक मित्र थे पेंट कंपनी में काम करते थे, वो बोलते थे कि 1 स्क्वायर फीट भी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें पेंट लगना ही लगना है। तो पेंट की कंपनियां हैं, उसके बाद आप देखें इसमें तार लगने हैं, उसमें एसी लगनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये पूरा इकोसिस्टम है जो बिल्ट होगा, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लास्टली आप अगर देखें राम मंदिर के उद्बोधन के बाद ही प्रधानमंत्री ने जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, हर घर पे रुफ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम लोग काफ़ी एनालाइज करते हैं, कई बार गलती कर चुके हैं पिछली मरतबा, तो उनकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि जो हर घर पे छत पे जो 300 शायद नहीं 18,000 रुपए की बात कर रहे हैं शायद का बेनिफिट होगा, तो उसमें जो कंपनियां काम करती हैं पैनल बनाने के लिए, वॉर इंजीनियरिंग है, टाटा पावर है, ऐसी कंपनियां। और मैं एक चीज स्टडी पढ़ रहा था कि पूरे इकोसिस्टम में अगर रूफ पे लगाया जाए तो 30 से 35% पैनल लगता है उसमें। उसके बाद 8 से 12% तार लगते हैं, जो तार की कंपनियां हैं, पॉलीकैब्स, हैवेल्स, ठीक है, केआई इंडस्ट्रीज, वो केबल लगता है। उसके बाद वी गार्ड कुछ मोटर्स बनाता है उसमें, वो लगता है, कुछ बैटरीज लगेंगी। तो ये इकोसिस्टम बिल्ट होगा जिसमें कि बहुत बड़ा कंपनी मतलब गवर्नमेंट खर्च कर रही है सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंपनी काम कर रही है, हमको देखना है, प्लस वैल्यूएशन देखने हैं। जब से मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया और अभी तक अगर आप देखेंगे सोलर की कंपनियों में ह्यूज रन अप ऑलरेडी आ चुका है। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अभी खरीदो, लेकिन जब ध्यान रखो कि वो उस जगह पे काफी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गीता बाइबल ऑफ स्टॉक मार्केट आप लोग समझ ही गए होंगे। 10 मिनट में सारे सेक्टर्स, उनके अंदर के छोटे वाले सेक्टर्स सब कवर कर दिए।
एंड आई बिलीव जो भी हमारी ऑडियंस है वो मेरे जो पोर्टफोलियो पिक्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं, क्योंकि यूजुअली आई डोंट गिव आउट ट्रेडिंग कॉल्स, तो उनको भी कुछ ना कुछ अभी बिकॉज दे आर वॉचिंग कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो एक सेक्टर है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, और हमेशा जब भी मैं अपनी पोर्टफोलियो पिक भी देता हूँ तो बहुत बेसिक बात करता हूँ। यू नो आई एम नॉट दैट मच इनटू नंबर्स। हमने इंफ्रा की बात कर ली, हमने डिफेंस की बात कर ली, सबकी बात कर ली है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम ये एक और चीज देखेंगे, एंड आई बिलीव अभी 2024 जब गवर्नमेंट जीतती है उसके बाद कंजम्पशन पे फोकस जाने वाला है 100 करोड़ प्लस। और कंजम्पशन का हमारा जो ग्रोथ है बिकॉज ऑफ लाइक एनी रीजन, चाहे इन्फ्लेशन के कारण हो या कोविड में जो जॉब लॉसेस हुए, जो लाइफ लॉसेस हुई, अभी तक फैमिलीज उससे रिकवर नहीं कर पा रही हैं। बट जब तक हमारे देश में कंजम्पशन को बूस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री, अभी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट हम ये ना भूलें जो पॉपुलेशन हम कमांड करते हैं, जितना यूथ हम कमांड करते हैं, हमको अपनी इकोनॉमी को आगे ड्राइव करने के लिए कंजम्पशन को बूस्ट देना पड़ेगा। जो हम लोग की अभी सिचुएशन है, अगर हम 8-9% कंजम्पशन नहीं लेके जा पाते तो जो हमारे आगे के टारगेट्स है वो नहीं होते। तो कंजम्पशन स्टॉक्स बीटन डाउन, कैन नॉट टॉक अबाउट देम। तो कंजम्पशन इज माय बेट ऑन न्यू ग्रोथ स्टोरी। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, गंधर्व? Sir, I think more or less, sir and you have talked about pretty much every sector, and आपने consumption भी cover कर लिया. So I think there is nothing more left to say. Vivek, anything in the end that you would like to put forward? Consumption, I feel, will continue to be a defensive sector, and at least I believe in contrarian investing to a certain extent. So abhi I feel that consumption stocks, since they have not done well for 3-4 years, हर cycle चेंज होते रहते हैं हर 2-3 साल में, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-1.5 साल में कंजम्पशन का थीम शुड कम बैक अगेन, एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव नॉट डन वेल। सो आई थिंक इस मार्केट में अगर किसी को पैसे डालने हैं और डाउनसाइड भी प्रोटेक्टेड चाहिए तो कंजम्पशन इज अ वेरी गुड स्पेस। Thanks for the support. I believe we are done with this session. Thank you, all three gentlemen, to join us and educate the audience sitting over here and watching us live on India News Business. It was amazing talking. Thank you. Thank you so much, sir. Now, the time for felicitation. Please come. And I'd like to call Rachit Khandelwal and Gandharv Anand. They will felicitate Vivek Banka and Santosh Singh. Rachit Khandelwal